बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम साइकस के फीमेल प्लांट पर फीमेल कोन्स, मेगास्पोरोफिल्स, मेगास्पोरोजेनेसिस, फीमेल गैमेटोफाइट एंड डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनियम के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि फीमेल प्लांट जो है उसके ऊपर फीमेल कोन्स प्रोड्यूस होती हैं। इन साइकस टाइप megasporophylls do not form compact cones, and each female cone it consists of loosely arranged megasporophylls which surround the shoot apex. Means terminal part of the shoot apex जो है it is surrounded by the megasporophylls which are loosely arranged like the foliage leaves. And each megasporophyll is pinnate leaf-like structure which is differentiated into two parts. Upper is the broad end which tapers towards the end. In this diagram we can see the megasporophylls which are loosely arranged at the terminal part of the shoot to form a cone-like structure which is not compact. And these are the megasporophylls which are differentiated into two parts. Upper जो है broad part है जो end की तरफ जो है वो tapers mean के pointed हो जाता है, and the lower portion is stalk like which is known as type, and on this type the ovules are produced on lateral sides on usually on both sides in two rows, and these ovules are produced from 4 to 6 ovules are produced on one megasporophyll, and these ovules they are usually red color of red color in cycas, and they also contains hairy in structure, and the length of the ovule is also specific in different types of species. For example, it may reach to 6 centimeter in length, and the number of ovules it also is variable in different types of cycas species जो कि 4 से 8 तक हो सकता है. This is the diagram of another cycas strobilus which is formed by the loose arrangement of the megasporophylls on which the ovules are produced on both sides, on the lateral sides. Here is another arrangement of the megasporophyll, loose arrangement of the megasporophylls of another cycas species. Now we will discuss the structure and development of this ovule which are produced on the cycas. Ovule is an erect in structure, usually oval or rounded in shape, and on the ovule on upper side which is opposite to the attachment point of the ovule to the stipe, an opening is present which is known as the micropyle, and the portion which is opposite to this micropyle means कि attachment side की तरफ जो ovule का part है जहाँ से ovule start हो रहा है that is known as the clasa, and ovule consists of a large portion of thin walled parenchyma cells which is a massive structure, and this nucellus it is surrounded by a covering on its outer side which is known as integument, and integument is free of nucellus from the upper portion of the nucellus. मीन्स के nucellus के अपर पोर्शन पर इंटेगुमेंट जो है प्रेजेंट नहीं होती है, वहाँ पर जहाँ पर माइक्रोपाइल ओपनिंग प्रेजेंट होता है वहाँ पर इंटेगुमेंट दोनों जो है वो ज्वाइन नहीं करती हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पर ओपनिंग माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है. Integument consists of 3 layers. Outer and inner layers are soft and fleshy,
while the middle layer during the seed formation, when the ovule is matured, it becomes stony or hard. This nucellus in the ovule, it is considered equivalent to the megasporangium, मीन कि इसको मेगास्पोरेंजियम के बराबर जो है वो समझा जाता है कि ये मेगास्पोरेंजियम है, और जिसके अंदर थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स और डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ न्यूसेलस जो है इट ग्रोज इनटू अ बीक लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ आउटग्रोथ की फॉर्म प्रेजेंट होती है, एंड दिस इज नोन एज द न्यूसेलर बीक। एंड द अपर सेल्स ऑफ द न्यूसेलर बीक दे डिजनरेट और डिसऑर्गेनाइज, और वहाँ पर जो चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर कैविटी जो स्पेस प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज द पोलन चैम्बर, जहाँ पर पोलन्स जो हैं, पोलन ग्रेन जो हैं वो आकर गिरते हैं पोलिनेशन के बाद। यहाँ पर हम नेक्स्ट जो है वो डायग्राम देखते हैं इसकी। दिस इज द सिंगल मेगास्पोरोफिल, जिसके ऊपर जो है ये ओव्यूल्स लिटिल साइड पर प्रेजेंट है, और ईच ओव्यूल जो है अगर इसका सेक्शन देखें तो उसमें हमें ये जो है वो स्ट्रक्चर्स नज़र आती हैं। दिस इज़ द अटैचमेंट पॉइंट टू द स्टाइप, एंड दिस एंड ऑफ द ओव्यूल जो अटैचमेंट साइड की तरफ प्रेजेंट होता है इसको क्लाजा कहते हैं, एंड ऑपोजिट पॉइंट जो है इसको माइक्रोपाइल कहते हैं विच इज़ एन ओपनिंग, जहाँ पर दो इंटेगुमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, लेकिन इस पॉइंट पर जो है वो इंटेगुमेंट्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ओपनिंग प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज द माइक्रोपाइल। दिस इज द इंटेगुमेंट जो कि 3 लेयर्ड है, आउटर फ्लैशी लेयर, इनर फ्लैशी लेयर एंड द मिडल स्टोनी लेयर जो बाद में हार्ड हो जाती है, और सेंट्रल मेजर पोर्शन जो है वो न्यूसेलस टिश्यू जो है उस पर मुश्तमिल होता है विच कंसिस्ट ऑफ द थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स और डेंस साइटोप्लाज्म पर मुश्तमिल होता है। ये बाद वाली जो सेंट्रल पोर्शन है न्यूसेलस के अंदर फिर बाद में जो है लेटर स्टेज पर जो है वो डेवलपमेंट होती है। तो ये जो है वो ओव्यूल का जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं कि ओव्यूल जो है वो उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। जिस तरह माइक्रोस्पोरोफिल पर हाइपोडर्मल सेल से माइक्रोस्पोरेंशियम की डेवलपमेंट होती है, इसी तरह यहाँ पर भी इस टाइप रीजन का जो हाइपोडर्मल सेल है इट एक्ट्स एज द ओव्यूल इनिशियल सेल, और इसमें जो है वो उसमें डिविजन्स होती हैं, और उस डिविजन्स के रिजल्ट के तौर पर जो है वो लार्ज मैस ऑफ न्यूसेलस टिश्यू इज़ प्रोड्यूस्ड, और उसके बाद इंटेगुमेंट जो है वो लेटर स्टेज पर बाद में जो है वो ओव्यूल के दोनों साइड पर जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, जो यहाँ पर आकर ज्वाइन नहीं करती है, और इस तरह से ओव्यूल जो है वो डेवलप होता है। Now these are the diagrams again showing the mature ovule। इसका हेयरी स्ट्रक्चर जो है वो शो कर रहा है, और ये ओव्यूल जो है ये मेगास्पोरोफिल पर प्रेजेंट है, जिसका ये अपर जो है ब्रॉड एंड है, और नीचे स्टाइप रीजन पर ओव्यूल जो है प्रेजेंट है। जहाँ नेक्स्ट डायग्राम में जो है वो हम देखते हैं डिफरेंट साइकस स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो मेगास्पोरोफिल्स होते हैं, जिनके ऊपर जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ ओव्यूल जो हैं दीज आर produced on the lateral side of the megasporophyll। अब हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि ओव्यूल के अंदर जो है वो मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होती है, कि मीन के मेगास्पोर जो है वो किस तरह से डेवलप करता है, और मेगास्पोर के डेवलप करने के बाद मेगास्पोर फिर जो है वो कैसे बनता है, और फिर किस तरह से फीमेल गेमिटोफाइट जो है उसमें डेवलप होता है। तो न्यूसेलस का जो हमने पढ़ा कि सेंटर ऑफ द ओव्यूल जो है इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द न्यूसेलस रीजन। तो न्यूसेलस जो है उसके इनर डीपली लाइंग सेल जो है उसमें से एक सेल जो है वो न्यूसेलस का एनलार्ज हो जाता है, एंड इट फंक्शंस एज अ मेगास्पोर मदर सेल, और चूँकि ये डिप्लॉयड होता है सो रिडक्शन डिवीजन विल अकर इन दिस, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिडक्शन डिवीजन लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स, मतलब लीनियर रो में जो है वो 4 टेट्राड जो है वो 4 सेल जो है वो प्रोड्यूस होंगे। आउट ऑफ दिस 4 सेल अपर 3 जो है वो डिजनरेट हो जाएंगे, जबकि लोअर मोस्ट जो है वो सर्वाइव करता है, वो फंक्शनल होता है, एंड इट एनलार्जेस टू बिकम टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक और द फीमेल गेमिटोफाइट, यानी कि फंक्शनल जो मेगास्पोर होता है उससे जो है वो एम्ब्रियो सैक या जिसको हम फीमेल गेमिटोफाइट कहते हैं वो प्रोड्यूस होगा।
तो यहाँ पर जो है वो हम डायग्राम देखते हैं इसकी मेगास्पोरोजेनेसिस की, कि न्यूसेलस रीजन का एक सेल जो है वह लार्ज होकर मेगास्पोर मदर सेल के तौर पर एक्ट करता है, फिर रिडक्शन डिवीजन होती है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिडक्शन डिवीजन जो है वो 4 लीनियर जो है वो टेट्राड जो है वो प्रोड्यूस होता है 4 सेल्स का, जिसमें से आउटर 3 जो है डीजनरेट हो जाते हैं, लोअर 1 जो है वो फंक्शनल होता है, विच एनलार्जेस इन साइज टू फॉर्म द फंक्शनल मेगा स्पोर, और जिससे जो है वो डेवलपमेंट के बाद जो है ये अब जो है वो फीमेल गेमीटोफाइट जो है वो डेवलप करेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फीमेल गेमीटोफाइट की डेवलपमेंट किस तरह से होती है मेगास्पोर से। फंक्शनल मेगास्पोर ओव्यूल के अंदर जो है ये एनलार्ज हो जाता है, और ये जो है वो दिस इज नाउ नोन एज द एम्ब्रियो सैक। इसके इर्द गिर्द जो टिश्यू होते हैं दीज बिकम वैक्यूलेटेड टू फॉर्म द स्पॉन्जी लेयर, और ये जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक जो है वो उसको जो है वो मेगास्पोर की जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसको जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कैसे डेवलपमेंट होती है इसमें, नेक्स्ट जो है फर्दर क्या डिविजन होती हैं मेगास्पोर के अंदर। मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है वो उसमें जो है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स होती हैं, इनके नेक्स्ट जितनी भी डिवीजन होंगी माइटोटिक डिवीजन्स होंगी, और इन डिवीजन में जस्ट न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती है, और हाँ 1000 और मोर जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस्ड, एंड सेंटर में जो है वो इसमें जो है वो वैक्यूल डेवलप हो जाता है, मीन के सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियाई नहीं प्रेजेंट होती है, वहाँ पर वैक्यूल प्रेजेंट होता है, फ्री होती है, फ्री ऑफ न्यूक्लियाई, और इसके बाद जो है वो न्यूक्लियाई जो है वैक्यूल जो है वह लार्ज होना शुरू हो जाता है, और जो न्यूक्लियाई होते हैं वो पेरिफेरल साइड्स की तरफ जो है वो पुश होना शुरू हो जाते हैं, और यानी कि पेरिफेरल साइड में पेरिफेरल लेयर में जो है वो अरेंज हो जाते हैं न्यूक्लियाई। फिर लेटर स्टेज में जो है वो सेंटर में जहाँ वैक्यूल प्रेजेंट है वहाँ पर जो है वो साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस होती है, साइटोप्लाज्म प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वैक्यूल डिसअपियर हो जाता है ग्रेजुअली। नाउ एम्ब्रियो सैक इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड वाटर साइटोप्लाज्म, जिसमें कभी वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई है। देन आफ्टर दिस अरेंजमेंट जो है वो सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, और जो पेरिफेरल साइड पर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर जो है वो सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, विच कंटिन्यूज टूवर्ड्स द सेंटर, एंड ग्रेजुअली द एंटायर गेमीटोफाइट, द होल गेमीटोफाइट जो है इट बिकम्स सेलुलर, मीन के ऑल न्यूक्लियाई जो है उनके गिर्द सेल वॉल फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, एंड दिस मेच्योर मैगस जो है वो दिस मेच्योर गेमीटोफाइट जो है it is surrounded by 2 layers, the inner being the megaspore wall। इनके न्यूसेलस से जो है वो मेगास्पोर डेवलप हुआ, और मेगास्पोर जो है उसके बाद उससे जो है उसमें डिवीजन के बाद जो है वो मेच्योर फीमेल गेमीटोफाइट जो है वो उसकी डेवलपमेंट हुई है, जिस विच कंसिस्ट ऑफ द सेलुलर स्ट्रक्चर, और उसकी आउटर जो वॉल है वो मेगास्पोर वॉल कहलाती है। यहाँ पर दोबारा से हम टेट्राइड फॉर्मेशन की डायग्राम देख रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट आगे जो है मेगास्पोर जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसमें ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन दिखाई गई है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेंटर में जो वैक्यूल प्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद वैक्यूल डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, और ऑल द न्यूक्लियाई जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, एंड देन वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम द पेरिफेरल लेयर, एंड दिस वॉल फॉर्मेशन कंटिन्यूज टूवर्ड्स द सेंटर, एंड टिल all the nuclei these are surrounded by the wall, and this structure, this mass, this tissue is now known as the female gametophyte, which is the cellular structure। अब इसके बाद फीमेल गेमीटोफाइट जो है जो ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, देन इन दिस फीमेल गेमीटोफाइट द डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम विल अकर। आर्चिगोनियम इसमें जो है वो किस तरह से डेवलप होती है, पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। मेच्योर आर्चिगोनियम इट कंसिस्ट ऑफ 4 सेल्ड नेक एंड अ लार्ज एग सराउंडेड बाय अ टफ मेम्ब्रेन, जैकेट लेयर जो है उसके इर्द गिर्द प्रेजेंट होती है, एंड फ्यू सेल्स ऑफ द फीमेल गेमीटोफाइट नियर द माइक्रोपाइलर एंड दे फंक्शन एज द, यानी कि आर्चिगोनियम जो है वो किस तरह से डेवलप होती है कि फीमेल जो गेमीटोफाइट अभी प्रोड्यूस हुआ है मेगास्पोर की डेवलपमेंट के बाद, मेगास्पोर में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद जो फीमेल गेमीटोफाइट प्रोड्यूस हुआ है, इसके कुछ सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट होते हैं, दे एक्ट एज द आर्चिगोनियल इनिशियल सेल्स।
and each archegonial initial cell it divides by periclinal wall to form a smaller outer primary neck cell जो है वो 4 neck cells बनाएगा और बाद में और उसके बाद नीचे वाला जो है वो लार्ज सेंट्रल सेल बनाएगा एंड न्यूक्लियस ऑफ द सेंट्रल सेल इट डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू फॉर्म अ स्मॉल वेंट्रल कैनाल सेल एंड अ लार्ज एग और वेंट्रल कैनाल जो न्यूक्लियस है वो डिजनरेट हो जाता है जल्द ही और वेजिटेटिव सेल सराउंडिंग द आर्चिगोनियम जो है वो जैकेट लेयर बना देते हैं। यहाँ पर जो है वो हम देख सकते हैं ये मेगास्पोरोजेनेसिस की और यहाँ पर जो है वो फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद जो है फीमेल गेमीटोफाइट प्रोड्यूस हुआ। अब इस फीमेल गेमीटोफाइट जो है वो उसके फ्यू सेल जो हैं जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट होते हैं दे एक्ट एज द आर्चिगोनियल इनिशियल सेल्स एंड दिस आर्चिगोनियल इनिशियल सेल जितने भी प्रोड्यूस होते हैं हर आर्चिगोनियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है और 2 सेल्स बनते हैं। आउटर सेल जो है वो प्राइमरी नेक सेल कहलाता है जो बाद में ये आर्चिगोनियम जो है उसके जो है वो नेक जो है वो सेल्स जो है वो बनाएगा जबकि लोअर जो सेल है इनर सेल जो है दैट इज़ द सेंट्रल सेल एंड दिस सेंट्रल सेल जो है वो माइटोटिकली डिवाइड होकर जो है वो 2 सेल जो है वो बनाएगा सेंट्रल सेल इट विल एनलार्ज इन साइज और उसके बाद जो है वो इसमें 1 डिवीजन विल अकर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन 2 cells are produced. Upper one, smaller one is the ventral canal cell and lower is the egg cell. और इसके बाद जो है वो आर्चिगोनियम के इर्द गिर्द के जो टिश्यू है वो उसके इर्द गिर्द जो है वो टफ लेयर इसकी जैकेट जो है वो बना देंगे। दिस इज द जैकेट लेयर अराउंड द ईच आर्चिगोनियम एंड इन वन ओव्यूल जो है वो न्यूसेलस टिश्यू के अंदर जो है वो उसमें फीमेल गेमीटोफाइट के अंदर जो है वो मोर देन 1 आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस्ड इन द साइकस। सो स्टूडेंट्स आज हमने फीमेल साइकस प्लांट पर जो है वो फीमेल कोन किस तरह से बनती है, मेगास्पोरोफिल का स्ट्रक्चर पढ़ा हमने और मेगास्पोर किस तरह से प्रोड्यूस होता है, मेगास्पोर की डेवलपमेंट फीमेल गेमीटोफाइट में किस तरह से होती है और फीमेल गेमीटोफाइट के अंदर आर्चिगोनिया की स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के बारे में आज हमने जो है वो पढ़ा है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फर्टिलाइजेशन और जो है वो उसमें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे।